parents do have this kind of interpersonal communication, also sharing the journey of how to actually bring up a very difficult journey of rearing a special needs child from the starting. And if I start that, first you get to know that you have to work lot more than you are expected to, because rearing a special needs child itself is a journey of crashing down many dreams. I think the parent would agree to that. And but then you have to rebuild on those dreams, because as parents, we would always want our kids to do something, to shine on something. So to do that, the parents have to really look for a lot of avenues and things, so that the child doesn't get crushed because of the deficit that the child has been born with. So I think this journey is very beautiful, and the dreams will not be fulfilled to a great extent, but at least as a human being, as a parent of a special needs child, we can definitely give it our best shot. Nobody can stop us from doing that. So let's go on, and with the help of wonderful institutions like you, Maria, I think we all can see our hopes getting fulfilled, the dreams getting fulfilled. So if I have anybody to thank to, I think it's AIMS Multimedia and the beautiful team that they have created. It's the creation of a beautiful organization and the entire team, which really helps to give a niche to the child, to each and every child, because they are difficult to handle. Bipasha is definitely very difficult to handle, but how much proactive the teachers are and the dedication that they work with is really beautiful. It's a beautiful journey, and there are times which are very difficult. So we have to come out of that time. We have to give ourselves that pumping. That no, it may be difficult, but we have to still work on. We cannot give up. So because if we give up, then the road gets closed. Then we see a barrier which we cannot cross. So I think it's very important. This is what I wanted to share. So one thing I realized that Bipasha has brought her own fortune with herself, because even before she was born, I had changed my job because my salary was not sufficient at that time I was not sure how I'd take care of my family. And so just the day before, or I think the day she was born, that whole 3 months salary came at once. And so it was some kind of protection. And for us it was a huge amount that time. Brought with herself. 24 years. And so that itself was a kind of sign from the heavens that she has come with her own unique protection. So of course we discovered her condition of autism when she was only 3 years old, because she was not speaking and all, and we were really worried. Mom was really worried, and we thought it was a speech problem. We thought it might be a hearing problem, but fortunately we met somebody, a speech therapist, who said that no, it's not a speech problem, and he guided us to WIMHANS, which is where her intervention began. And then her speech came up, and whatever money I had saved during Reuters, that I had saved a bit of money with that new job with Reuters. A lot of that again came into help when the intervention started. And of course it was very financially intensive, it was very demanding and all that. But again, we had the means to kind of take care. And this I've realized in so many other stages of our life, because when we needed a integrated school for her, which is, and we were really, again, question of money and everything was there, but somehow the jobs changed, the money increased, and we could afford to send her to a very good school, which was Vasant Valley. It was beyond our means earlier. We were a middle class family, it was beyond our means, but when we needed it, we got the salary also, which we needed to kind of, again this happened. And again when she was graduating from school, our worry was that what will she do after school, because after 18 we didn't know, and we luckily found
it's multimedia, and again it seems like divine intervention because I think your outfit was starting just when Bipasha was graduating from school, and she was amongst the first in the first batch. So what we were worried about, that transition again happened very smoothly. So at every stage of her life, I've seen that somehow when we were worried about something, she brings her own fortune, and it takes care of things. We think, we get worried that what will happen, but when we put our faith in, as she was saying, divine providence, and whatever name you call it, or in your prayers, then things seem to move. And it always, we find a path. So our experience of the past makes us very sure that while the future may not be clear to us, but we are assured that since we have seen so much, things will take care of itself in the future also, and we will have the right support, the right guidance, the right training will be there when we need it. So that's all. Thank you. Good morning everyone. ऋतिक के साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है अभी तक, और ऋतिक के होने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि ऋतिक एक डिफरेंटली एबल चाइल्ड है, तो इनके लिए सोसाइटी का एक देखने का तरीका बहुत डिफरेंट है। इनको एक स्टिग्मा समझा जाता है कि ये डिफरेंट है तो ये कुछ कर नहीं सकते, या इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को साइड किया जाए, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है आजकल भी। और मुझे अपनी ही फैमिली में उसके लिए खड़ा होना पड़ा, रिवोल्ट करना पड़ा अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट ऋतिक की वजह से। लेकिन उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि अकेले मैं कैसे उसे हैंडल कर सकती हूँ विदाउट एनी सपोर्ट। विदाउट एनी सपोर्ट मैंने उसे अकेले हैंडल किया है और लोगों के अगेंस्ट खड़ी हुई हूँ, रिवोल्ट किया है कि मुझे उसके लिए कैसे लड़ना है, उसे कैसे एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करना है। क्योंकि जो लोग उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनसे जो उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट से मुझे उसे बचाना है। मुझे उसे सिखाना है कि नहीं, आप पॉजिटिव हो, आप कर सकते हो। अगर सारे लोग उसके अगेंस्ट हैं, उसके बावजूद वो पॉजिटिव रहे, उसके साथ मुझे पॉजिटिव रहना पड़ा इस सिचुएशन में भी, कि सारे लोग नेगेटिव हैं। लब भी मुझे उसके सामने ये दिखाना पड़ा कि नहीं, सब पॉजिटिव है, तुम ठीक हो। तो एक अगर नॉर्मल चाइल्ड भी होता है, उसके लिए भी पेरेंट्स सोचते हैं, नॉर्मल होने के बावजूद भी अगर उसका फ्यूचर पेरेंट्स चिंतित रहते हैं, तो वो तो एक डिफरेंटली एबल चाइल्ड है। तो सेम चीज़ है, एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी पेरेंट्स उतना ही परेशान होता है जितना हम परेशान होते हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं कि अगर हम सोचे कि हमारे बाद उसका क्या होगा, तो एक नॉर्मल चाइल्ड के साथ भी हो सकता है कुछ भी। अगर नेगेटिव होना चाहेगा तो एक नॉर्मल चाइल्ड के साथ भी होगा, और अगर होना होगा तो हमारे चाइल्ड के साथ भी होगा। 2007 में उसका बर्थ हुआ था, तो बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड, सिजेरियन से था, तो हमें तो कुछ नहीं लगा। जब 2 साल की उम्र में, लगभग 2 साल, पौने 2 साल का हुआ, तो जब वैक्सीनेशन दे रहे थे, तो हमने ये बोला कि ये अब बोलता नहीं है, आवाज़ तो निकालता है लेकिन बोलता नहीं है। डॉक्टर ने उसका सिर का नाप लिया, उसको संदेह हुआ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, कि आप इसको चेक करिए, हो सकता है ऑटिज्म हो। हमने किया, उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये ऑटिस्टिक बच्चा है। मुझे तो मालूम था, मेरी वाइफ को नहीं मालूम था कि ऑटिस्टिक क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, मैंने बताया ऐसा ऐसा है कि 1-2 संस्था से जुड़े, एक मनोविकास नाम से संस्था भी है, उनसे परिचय हुआ, तो उन्होंने ही हमें बताया कि इंटीग्रेटेड स्कूल है हमारे लोकेलिटी में, छोटा सा स्कूल है लेकिन कॉमन बच्चे के साथ में पढ़ सकता है। तो ठीक है, वहाँ पर एडमिट करवा लिए। 1-2 जगह और गए थे, लेकिन वहाँ नहीं, वही लोकल में। प्रॉब्लम जो था मेनली इसका हाइपर था और आई कांटेक्ट नहीं था छोटे के समय में। सबसे बड़ा इसका पॉजिटिव साइड था कि हम लोग को छोड़ता नहीं था, बिल्कुल अपने आप को जैसे कहीं छोड़ दिए रह नहीं, हम लोग को बगैर ही रहता नहीं, उस कमरे में भी रहेगा, छोड़ दिए हम लोग के पास आ जाता था। विदाउट फैमिली ये कहीं बिल्कुल अकेला नहीं रहता था, ये एक पॉजिटिव साइन था। और आई कांटेक्ट का भी उसने सिखाया कि आई कांटेक्ट को भी इसको करवाइए और पार्क में ले जाइए। सबसे बड़ी जो दिल्ली में प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फैमिली का, कि पार्क ले जाना
वो समय की कमी होता है, तो ये है वो है। पार्क में ले जाओ तो ये आम बच्चों के साथ ये नहीं मिलता, आम बच्चे भी इसके साथ जल्दी घुल मिल नहीं करते हैं। ये एक बड़ा, फिर भी अपनी तरफ से जो कोशिश हुआ। सबसे बड़ी बात इसकी डेवलपमेंट जो थी नॉर्मल, फिजिकली बहुत नॉर्मल था। मेंटली में ये कह सकते कि इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। और एक चीज़ पॉजिटिव था कि हम लोग को बगैर रहता नहीं था, अपना काम जो एक बार बता दिया जाए उसको इतना फॉलो करता था कि नेक्स्ट टाइम में उसको बोलने की जरूरत नहीं होती थी। और शायद हमने एम्स को ज्वाइन किया 2012 या 13 में शायद समथिंग। तब तक स्पीच थेरेपी भी 1-2 जगह बदले, 2-3 जगह बदले। बच्चा तो उस समय छोटा था, 2-3 जगह बदले। हाल के 2-3 साल पहले बिफोर कोरोना एक नाम बोल रहा हूँ वाइफ में, एक्चुअली हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, वाइफ ही देती है। वाइफ ही सब कुछ करती है, ज़्यादा कुछ इसका आगे पीछे घर में जो भी होमवर्क जितना करना है जहाँ से सीख के आती है वो सारा कुछ करती है, अपने लेवल से जो भी करती है। इसके बाद उसमें स्पीच थेरेपी में इतना हुआ कि उस टीचर का जो थेरेपी ज्ञान था और स्पीच देने का तरीका था, उससे उसने बहुत कुछ पकड़ लिया। बोल तो नहीं पाया, पूरी फुल्ली बोल तो नहीं पाया, लेकिन इतना था कि उसने यदि हम बोले कि इसको क्या करना तो उसका आंसर में जवाब देता, रिपीट नहीं करता था। 2 पॉइंट, एक है कि रिपीट कर देता है, वो रिपीट नहीं आंसर देता था, चाहे छोटा दे या बड़ा दे। बड़ा देने के लिए ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता था, छोटा दे दिया नहीं हाँ कर दिया तो नोडिंग कर दिया, हाँ कर दिया, तो ये तो कम से कम आ गया। नेगेटिव में हमारा अभी तक चूंकि न्यूक्लियर फैमिली है, इसमें नो डाउट नेगेटिव वही चीज़ है, कोई और ज़्यादा सपोर्टिव अभी नहीं है। फैमिली मेम्बर्स में रहते नहीं है, हम ही लोग रहते हैं, हम ही लोग को देखना होना है, बस इतना ही है। और आपके सामने है बच्चा, काफ़ी अब 18 साल 17 साल का, ये 17 साल क्रॉस किया है जस्ट नवंबर में, और आज 18 साल का वो जल्दी स्टार्ट हुआ है अभी, बस ऐसा ही है। कहीं भी इसको नेगेटिव साइन नहीं मिला, जहाँ भी गए वहाँ नेगेटिव साइन नहीं मिला, क्योंकि इसकी बिहेवियर जो है बिल्कुल नॉर्मल जैसा है। बस उसको इम्प्लीमेंट करने में बॉडी फंक्शन जो है, मोटर फंक्शन, न्यूरॉन फंक्शन जो है वो साथ नहीं देता, वो अलग बात है। लेकिन अभी दिन रात वाइफ जो लगी रहती है, एटलीस्ट डेवलपमेंट इतना हो जाए कि इंडिपेंडेंट। थैंक यू सर। Thank you.